Hello guys, welcome to our channel. So today we will discuss CSR Net 2026 linear algebra PYQ questions. So come to our first question. In first question we have to given that let M3R to M3R, let M3R denote the vector spaces of all 3 cross 3 matrices with real entries and linear transpose M3R to M3R given that A map to A transpose. Consider the following state two statement. First statement is given that T is diagonalizable. Second one is given that T trace of T equal to 6. Okay, so then we have to check if S1 true, S2 true, which one option is true. So for before that, we check that. So we use the method of matrix representation. The standard basis for B for a 3 cross 3 matrix. Let A belongs to M 3 cross 3. Let A belongs to 3 cross 3. Then basis standard basis have elements equal to E11, E12, comma E13, comma E21, E22, comma E23, comma E31, E32 and E33. ठीक है? Since R transpose of Eij equal to Eji. Okay, so our transpose, that is transpose of E11 equal to E11, transpose of E22 equal to E22, and transpose of E33 equal to E33. Why this happened? Because they are the diagonal elements, and that in transpose, when we do a transpose of a matrix, then diagonal element map to map to self. Okay, for and now transpose of E21 equal to uh, transpose of E21 equal to E12, transpose of E12 equal to E21, and transpose of 1 2 हो गया 1 3 equal to E31. So I replace J and J replace I. So now we write is transpose matrix M equal to here T of E1 E11, T of E12, T of E3 E13, and dash 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 similarly this. Okay, so this one equal to 1 here E11, E12, E13, E21, E22, E23, E31, E32, and E33. So when we write this arithmetic is equal to 1 0 0 0 0 0 0 and 0. Now for E12 there is 2 1 by 1 and all other things 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 by 1 and all are 0 0 0 0 0 0 0 0. Now T of E 2 1 there is 1 2 by 1 and all are 0 0 0 0 0 0 0 0 E2 E22 E22 पे 1 मतलब फिफ्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाउ फोर. अब हम E23 के लिए देखेंगे. E23 का इमेज आएगा E23 32, तो 32 पे 1 और बाकी जगह 0. तो 1 2 3 4 5 6 7. अब बचा है E31 13, तो 0 0 1 6 7 8 9. E32 23 0 0 0 0 0 23 6 नंबर पे आएगा एंड ऑल आर 0. नाउ E31 E33, तो ऑल आर 0. So it's a symmetric matrix. We can easily we can easily check that it's a symmetric matrix, and symmetric matrix is always diagonalizable. So if so now come to point that T is diagonalizable. Yes. Trace of T equal to 6. No, trace of T equal to this. In trace come, this is the trace of this matrix. Sorry, I think I missed one thing. So for trace only this element come in one, and this and this. These three are come in trace. So trace of T equal to 3, not 6. So this one is correct. No, this one is wrong. If it's only 3 correct, or option we have 3, then that option is correct. Okay. So now come to the next question.
We can also do by one thing. T of A equal to A transpose, then T of A equal to A, that is T of T square equal to T square equal to A, मतलब कि x square minus 1 equal to 0. Then minimal polynomial of T of x equal to x square minus 1, that is x minus 1 and x plus 1. Both component come in linear form, then T is diagonalizable. And second option we can do by making that matrix and solve this. Okay, now come to our next question. Let M4R denote the set of our 4 cross 4 matrices, and let B set B represent the A belongs to M4R as a trace of 2A plus 3I not equal to minus 5. So we have to check that B is a compact set, connected set, closed set, or open set. For this, firstly we have to find out the what is trace of a matrix A. For this, we can do that. We know property of trace of A plus B equal to trace of A plus में trace of B, right? So now we have to so trace of 2A plus 3I, ये क्या होगा? ये होगा 2 times of trace of A plus में 3 times of trace of identity. Okay, so we have to given that trace of 2A plus 3I not equal to minus 5. That is trace of 2 times of trace of A plus 3 times of trace of identity not equal to minus 5. एंड आई इज ए 4x4 मैट्रिक्स एंड 4x4 मैट्रिक्स हम जानते हैं कि इसका जो ट्रेस होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए उसकी वैल्यू 4 होगी। तो अब हम इसमें वैल्यू 4 पुट कर देंगे, 3 इंटू 4 नॉट इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ से हमको मिलेगा कि ट्रेस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए नॉट इक्वल टू माइनस 17, दैट इज ट्रेस ऑफ ए नॉट इक्वल टू माइनस 8.5। अब हमारे पास बी के अंदर वो मैट्रिक्स करती है, सिंपली हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू M4R such that trace of A not equal to minus 8.5। हम एक है ना फंक्शन डिफाइन करते हैं फॉर M4R2 एक रियल नंबर सच दैट कि जो अपना M4R है A बिलोंग्स टू M4R वो मैप कर रहा है हमारे इसके ट्रेस ऑफ A पे। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है और जो इमेज सेट ऑफ होगी नहीं बिलोंग्स टू M4R नोट हम करते हैं कि ये A बिलोंग कर रहा है M4R2R, हाँ ठीक है। तो अब हम लेते हैं जो ए मैट्रिक्स है वो बिलोंग कर रहा है सेट बी से, तो इसका जो रेंज सेट होगा वो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 8.5 यूनियन 8 टू इन्फिनिटी। अब ये हमारा भी ये भी एक ओपन सेट है, ये भी एक ओपन सेट है, और रियल एनालिसिस के हम जानते हैं कि यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ए ओपन सेट, तो मतलब कि ये ओपन सेट हो गया। एफ जो हमारा है वो कंटिन्यूस फंक्शन है और उसकी जो इमेज सेट आ रही है वो आ रही है ओपन सेट। तो कंटिन्यूस फंक्शन की अगर इमेज सेट ओपन सेट होती है तो उसकी जो प्री इमेज होगी वो भी एक ओपन सेट होगी, मतलब कि जो सेट हमारा बी होगा वो एक ओपन सेट होगा। ये चीज हमने यहाँ से कंक्लूड कर लिया, मतलब कि कॉम्पैक्ट सेट नहीं, कनेक्टर सेट नहीं, क्लोज सेट नहीं, ये ओपन सेट। ठीक है, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमको गिवन है एक सेकेंड, ओके, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एक है 2x2 पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक एक दो अगर एक 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, मैंने मान लिया ए हमारा मैट्रिक्स है ए बी सी डी, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, मतलब कि इसकी जो दोनों आइगन वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आता है कि ट्रेस जो है वो a माइनस 2i का को 2 है, हमने अभी ये प्रॉपर्टी डिस्कस की है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो ट्रेस ऑफ ए होगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी होगा वो 2 हो जाएगा। आई कितने का है, 2x2 का ऑर्डर का है, मतलब कि ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मतलब कि ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा वो हो जाएगा 6। अब ट्रेस ऑफ ए आ गया अपना 6। अब इसका दूसरा चीज हमको गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2i इक्वल टू 28। तो मैं मान लेता हूँ कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 इसकी अपनी आइगन वैल्यू थी, तो यहाँ से तो एक कंक्लूजन ये निकल गया कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 6 है, इक्वेशन ए। तो यहाँ पे दिया है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2i इक्वल टू 28। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे कि इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो ये हो जाएगा कैलमिटल थ्योरम से इक्वल टू 28। अब इसका वैल्यू जब 28 आया तो मैं यहाँ पे इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस में लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल टू 28।
अब इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 टाइम्स ऑफ λ1 प्लस λ2 का होल स्क्वायर, सॉरी λ1 प्लस λ2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ λ1 λ2 इक्वल टू 24। सही है। अब जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा और λ1 इंटू λ2 इक्वल टू डी मान लेते हैं क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट है, तो डी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू 6 है, 36 माइनस 2d इक्वल टू 24। जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d, डी स्क्वायर प्लस 4d इक्वल टू 96, दैट इज डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 96 इक्वल टू 0। तो इसके d इक्वल टू एक वैल्यू आएगी 8, एक d इक्वल टू आएगी -12। डी हमारा पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट मैट्रिक्स है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। d इक्वल टू 8 ओनली ऑप्शन वी हैव लेफ्ट। तो अब ने यहाँ से क्या कंक्लूड कर लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आ गया, 8। और हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a matrix A equal to determinant of a to the power n minus 1, here n equal to 2, that equal to a to the power 2 minus 1, that is 8. So our option is 8, correct. So now come to our next question. In this question we have to given that in this question we have to given that we have two matrix A and B set to be similar. If A and B are similar, then we denote it by A similar to B, and if A and B are not similar, so then we define by A not similar to B. Okay, that's the question. इस क्वेश्चन में गिवन है। अब उसके बाद हमको गिवन है कि पी क्यू आर 3 मैट्रिक्स है, तो अब हमको उनकी चेक करना है कि वो सिमिलर है कि नहीं है। तो नाउ फर्स्टली वी फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर। तो आइगन वैल्यू ऑफ पी इज 112, आइगन वैल्यू ऑफ क्यू इज 112, and eigenvalue of r is 112. We can simplify by p minus lambda I and then find out the value of lambda, then we can easily find out their eigenvalues. Okay, so अब हमारे पास इनकी आइगन वैल्यूज तो आ चुकी है। अब हम जानते हैं कि am is greater than equal to gm, and if two matrices are similar, then their algebraic multiplicity and geometric multiplicity both are equals. So and geometric multiplicity is greater than equal to 1, geometric multiplicity is greater than equal to 1 and less than equal to algebraic multiplicity. So for eigenvalue 2, geometric multiplicity algebraic multiplicity is 1 for each matrices, so geometric multiplicity is equal to 1. That is what I said before, eigenvalue 2, geometric multiplicity equal to 1 for every p, q and r matrices. Now come to matrix. Now we find out the geometric multiplicity for eigenvalue 1 for p. तो इस p में हमको गिवन है, तो we find out the p minus identity. तो p minus I equal to 0 0 0 -1 -1 0 0 1 1. So nullity of p minus I equal to 2. So geometric multiplicity for lambda equal to 1 equal to 2. Similarly for q minus I, we find out q minus I, and q minus I, when we find out q minus I equal to and 0 1 0 0 1 0 and 0 0 0. Geometric multiplicity for q equal also to, that is p is similar to q. Now for r minus I, when we find out, it's equal to 1 0 0 0 0 minus 1 0, sorry, 1 1 minute, 1 0 0। तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो आएगी वो आएगी इक्वल टू 1 के। तो q इज नॉट सिमिलर टू r बिकॉज इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आई है, हमारे यहाँ पे इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आई 1, और q के लिए जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आई थी वो थी q। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हुआ, हमारे यहाँ सोल्यूशन हुआ कि p जो है वो सिमिलर हो गया q के, एंड q इज नॉट सिमिलर टू r। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। p is similar to q and q is not similar to r, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, let PNR denotes let PNR be the vector space of all polynomial of degree less than and equal to 30. ओके, तो हम जानते हैं कि एनी डायमेंशन ऑफ P30R कितना हो जाएगा, एंड डायमेंशन ऑफ PNR होता है n+1, तो 30 n इक्वल टू 30 है, तो इसका डायमेंशन ऑफ PNR हो जाएगा
P30 ऑफ R हो जाएगा 31। ठीक है, पहली चीज हमारे यहाँ से कंफर्म हो गई है। एंड एक T इज लीनियर ट्रांसफॉर्म फॉर P30R to P30R सच दैट T स्क्वायर इक्वल टू 0। तो T क्या हो गया, एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया। देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ T। अब हमको गिवन है कि T स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज जो Tx होगा वो उसके कर्नल ऑफ x में बिलोंग करेगा। मतलब कि T ऑफ x इक्वल टू 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, T ऑफ x बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ T हो गया। मतलब कि इमेज सेट ऑफ T होगा वो हो जाएगा सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ T का। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ इमेज जो सेट ऑफ T जो होगा वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T। आपको दिख रहा होगा डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T से लेस देन हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि रैंक ऑफ T इक्वल टू मैं मान लेता हूँ R है। तो हम बाय रैंक नलिटी थ्योरम रैंक ऑफ T प्लस कर्नल ऑफ T इक्वल टू 31, दैट इज R is less than 31R by our first equation, that is 230। एक मिनट, ओ मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, कर्नल ऑफ T हो गया। तो कर्नल ऑफ जो T की जो रैंक हो जाएगी वो आ जाएगी 31। सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गलत आपके लिए, सॉरी। देखो मैं आपको मान लेता हूँ कि जो रैंक ऑफ T आएगा उसको मैंने मान लिया R है। बाई रैंक नलिटी थ्योरम रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T प्लस रैंक ऑफ डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T इक्वल टू 31। R प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T इक्वल टू 31। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T इक्वल टू, एक सेकेंड अभी पेन से समझ नहीं आ रहा है, इक्वल टू 31 माइनस R। and we or already here we have concluded that dimension of T plus less than equal to dimension of kernel of T, that is 31 minus R should be less than greater than equal to R, that is 2R should be greater than less than equal to 31, that is R is less than equal to 15.5। मतलब R की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी 15। तो दैट इज R is a integer, so rank always integer, तो R should be less than equal to 15। ओके, सो इट रिमेन्स टू शो दैट का अब हमने ये तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी हमने फाइंड आउट कर ली है, लेकिन अभी तक हम ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि इसकी जो रैंक होगी वो 31 एग्जैक्टली 15 होगी। तो इसका जो बेसिस होगा वो होगा 1x अप टू x टू द पावर 30 एंड एट t ऑफ x ऑफ 2 के जो होगा वो हो जाएगा x की पावर 2 के प्लस 1। हमने इसका एक t डिफाइन कर लिया है कि जो 2 के है वो 2 के प्लस 1 में डिफाइन जा रहा है। तो इससे क्या होगा, और जो x की पावर 2 के प्लस 1 है जिसमें x पावर 2 के प्लस 1 है वो जा रही है 0 पे। तो इससे हो जाएगा t स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, जो हर चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे अब हम कंक्लूड कर लेंगे जो इमेज सेट का जो उसका t होगा वो हो जाएगा स्पैनिंग सेट ऑफ x x क्यूब अप टू x टू द पावर 29। और जो इसकी जो रैंक ऑफ t हो जाएगी वो हो जाएगी 15। मतलब हमने एक ऐसा एग्जांपल फाइंड आउट कर लिया है जिसकी मैक्सिमम रैंक उसकी 15 आई है। तो इसका क्या हो जाएगा, r की जो मैक्सिमम रैंक है अपन 15 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इसका एग्जांपल नंबर सेकंड इसका ट्रू हो जाएगा। पहले तो हमने उसका अपर बाउंड निकाला कि अपर बाउंड कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। फिर हमने एक ऐसे एग्जांपल दिखा दिया कि जो उसके एग्जैक्टली 15 आ रहा है। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि जो इसकी मैक्सिमम रैंक हो जाएगी वो उसकी 15 हो सकती है। इसको हम एक और एग्जांपल, इसको हम एक सेकंड वे से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। वो मैं भी आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। सेकंड हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि हमको दिया है कि टी स्क्वायर इक्वल टू 0। हमको क्या गिवन है, टी स्क्वायर इक्वल टू 0 गिवन है। सेकंड मेथड इसका ये है। तो हम इसको मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो उसका मैक्स, इसको हम मान लेते हैं इसकी ये है मिनिमल पोलिनोमियल। मिनिमल पोलिनोमियल, अब इसकी मिनिमल पोलिनोमियल है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी एक्स टू पावर 31 इक्वल टू 0। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर कम से कम एक 2 + 2 का जोड़ा कैनोनिकल फॉर्म होगा विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू 0। वो होगा 0 1 0 0, मिनिमम एक तो मिलेगा। हमको इस चीज को मैक्सिमाइज करना है क्योंकि जो 1 + 1 का होगा वो तो होगा स्ट्रिक्टली 0, उसकी तो रैंक 0 होगी, लेकिन इसकी जो रैंक होगी वो उसकी रैंक होगी 1। तो हमको इसको मैक्सिमाइज करना है। अगर हम इसको क्लास इक्वेशन से देखें, इसको अगर हम 15 टाइम अगर इसको हम लिख दें, मैक्सिमम हम इसको 15 टाइम्स लिख सकते हैं, और जो 0 रैंक का होगा वो 1 हो जाएगा। तो इसका कितनी
कितनी रो आ गई है 30 रोज, ये कितने आ गए 31, तो इसका जोड़ा कैनोनिकल फॉर्म में 31/31 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसकी 15 होगी 15 ब्लॉक्स होंगे 2 क्रॉस 2 के, और सिंपली एक ब्लॉक होगा 1 क्रॉस 1 का, जिस चीज की मैक्सिमम रैंक हो जाएगी 15। ये अगर हम इसको क्लासिफिकेशन और जेसी फॉर्म से करने जाए तो ये सिंपली इस छोटे से में हो जाएगा सोल्व। अगला क्वेश्चन हमको अगले क्वेश्चन में हमको गिवन है कि जो एक P4R एक रियल वेक्टर स्पेस है। ओके, तो P4R डिनोट क्या कर रहा है, पॉलीनोमियल लेस देन और डिग्री इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो मैं एक पॉलीनोमियल मान लेता हूँ P, जो कि P4R के अंदर से बिलोंग कर रहा है, पॉलीनोमियल जो P4R के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो P इक्वल टू मैं मान लेता हूँ कि A प्लस bx प्लस में cx² प्लस में dx³ प्लस में ex⁴ है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि P बिलोंग्स टू V जो है, P P P है वो P4R में आ रहा है, और सेटिस्फाई क्या कर रहा है V के लिए कि P'2 इक्वल टू 0 एंड P1 इक्वल टू P3। ओके, तो डायमेंशन ऑफ V क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये ये दिस कंडीशन ये कंडीशन दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों कंडीशन जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुई है, इसके लिए इनका वाई डायमेंशन थ्योरम इन दोनों के लिए आ जाएगा कि हमारे पास टोटल डायमेंशन कितनी है, 1 2 3 4 5, और लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन कितनी, 2, तो 5 - 2 इक्वल टू 3, तो डायमेंशन ऑफ बी कितना हो जाएगा 3। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वो भी हो जाएगा 5 - 2 इक्वल टू 3, क्योंकि ये दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन है। और हम जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v प्लस डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन ऑफ v इंटरसेक्शन w, ये होगा। तो अब हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ v इंटरसेक्शन w। तो लेट p बिलोंग्स टू v इंटरसेक्शन w। तो फर्स्टली p बिलोंग्स टू w दैट इज p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड p डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये दो कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा। तो जब हम इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो इधर से आ जाएगा हमारे पास cx² p इक्वल टू, इधर से हमारे पास एक चीज निकल के आएगी कि a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा p होगा वो इस तरह से रहेगा cx² प्लस में dx³ प्लस में e की x⁴। अब जो हमारा p है वो v के अंदर से भी बिलोंग करेगा, है ना। अब p यदि v के अंदर से बिलोंग कर रहा है तो वो सेटिस्फाई करेगा p'2 इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन p'2 इक्वल टू 0, एंड सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा p ऑफ 1 इक्वल टू p ऑफ 3। इन दोनों कंडीशन को हम सेटिस्फाई करा देते हैं। अब p ऑफ 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इससे आ जाएगा p'2 इक्वल टू 0 आता है, यहाँ से आ जाएगा 4c प्लस में 12d प्लस में 32e इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा c प्लस d प्लस e इक्वल टू 9c प्लस 27d प्लस में 81e। तो इससे क्या होगा, हमारे पास तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिसमें दो कंडीशन है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8c प्लस 26d प्लस में 80e इक्वल टू 0। ओके, तो p इंटरसेक्शन w में एलिमेंट कैसे होंगे, p बिलोंग्स टू p4r सच दैट 4c प्लस 12d प्लस 32e इक्वल टू 0 एंड 8c प्लस 26d प्लस में 80e इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन होगी, तो डायमेंशन ऑफ v इंटरसेक्शन w कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमारे पास v इंटरसेक्शन w भी है, v की डायमेंशन है, w की डायमेंशन है, इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं वैल्यूज को। तो डायमेंशन ऑफ v प्लस w कितना हो जाएगा, 3 + 3 - 1 इक्वल टू 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्म, हाँ, ओके, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि np डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट p। ओके, एंड ए इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स हमको गिवन है, ये जो मैट्रिक्स हमको गिवन है वो है A1 1 A। ठीक है, तो बी जो गिवन है वो है B - 1 1 B।
तो फर्स्टली हम ए और वेयर एस बिलोंग्स टू where A belongs to S1 subset of S and B belongs to S2 subset of S और S हमको दिया है set of integer from -10 to 10। तो इसके अंदर टोटल हमारे पास 21 एलिमेंट है। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसके बाद हमको एक चीज और गिवन है कि टू हमको सिस्टम ऑफ ओडी गिवन है और एक चीज यहाँ पे बोला गया है कि जैसे ही हमारा टी इन्फिनिटी पे जाता है तो हमारा सॉल्यूशन है वो जीरो की ओर अप्रोच करता है। तो ये जब ओडी का एक सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक है कि ये जीरो पर कब टेंड्स करेगा, जब इसकी आइगन मैक्सिमम आइगन वैल्यू नेगेटिव हो। तो इसके लिए हमको पहले ए और बी की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ए की आइगन वैल्यू देखो यहाँ पे इसका रोम सम कितना है a+1। एक आइगन वैल्यू तो इसकी a+1 हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी इसका ट्रेस कितना 2a, तो 2a माइनस a+1 ये कितना हो जाएगा a-1। तो जो a की आइगन वैल्यू होगी λ1 इक्वल टू a+1 और λ2 इक्वल टू a-1। सिमिलरली बी के लिए मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। बी के लिए कैसे होगी b माइनस लैम्डा -1 1 b माइनस लैम्डा। इसका डिटरमिनेंट निकाल के जब हम सोल्व करेंगे तो b की आइगन वैल्यू आ जाएगी, एक आइगन वैल्यू तो इसकी आ जाएगी b प्लस आयोटा, सेकंड आ जाएगी b माइनस आयोटा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी a, इसकी मैक्सिमम आइगन वैल्यू कितनी आएगी a+1। तो यहाँ से a+1 होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए, दैट इज a लेस देन -1 हो जाएगा। तो S1 के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे -10 -n अप टू -1। सिमिलरली इसका रियल पार्ट लेस देन 0 होना चाहिए, दैट मीन b लेस देन 0 होना चाहिए। तो S2 का क्या आ जाएगा -10 -9 अप टू, तो -2 तक आएगा ये वाला, और ये वाला आएगा -1 तक क्योंकि नॉट इक्वल टू ये -1 लेस देन है। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ S1 कितना आ जाएगी 9, कार्डिनलिटी ऑफ सेट S2 कितनी हो जाएगी 10, और S1 जो है वो सबसेट किसका है, प्रॉपर सबसेट किसका है S2 का है। S1 यूनियन S2 क्या किसके इक्वल होगा, S1 यूनियन S2 किसके इक्वल होगा S2 के। और एक चीज S1 इंटरसेक्शन S2 किसके इक्वल होगा S1 के। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी 9, इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं S1 सबसेट S2 का यस, यूनियन कार्डिनलिटी इतनी है यस, ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत। वेट ए मिनट, इससे ट्रेस हो गया। Everything okay. Now come to our next question। इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है कि maximum value of is maximum value of x transpose A is a symmetric matrix and maximum value of x square A transpose x upon x transpose x की maximum और minimum value similarly x square A inverse x upon x transpose x की कितनी होगी। अब हम जानते हैं कि लेलेथ रिट्ज थ्योरम ये कहती है कि लैम्डा टाइम्स मिनिमम इफ एक हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो और लैम्डा मैक्सिमम एंड लैम्डा मिनिमम उस रेस्पेक्टिवली उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम आइगन वैल्यूज है। तो lambda minimum of A less than equal to x transpose AX upon में x transpose of x is less than equal to lambda maximum of A। ये एक थ्योरम है, रेलेथ रिट्ज थ्योरम इसको कहते हैं। तो देयरफॉर मैक्सिमम इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी मैक्सिमम आइगन वैल्यू, और इसकी जो होगी वो मिनिमम आइगन वैल्यू होगी। और हम जानते हैं कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर ए इनवर्स ये भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस होंगे। सो अब हम इस सीधा सा हमको ए की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हम ए की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ए की आइगन वैल्यू आएगी 2 2 प्लस रूट 2 एंड 2 माइनस रूट 2। तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज आ जाएंगी 4 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर एंड 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज आ जाएंगी 4 2 इंटू 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 सॉरी एंड 2 3 माइनस रूट 2। ठीक है, ये इसकी 3 माइनस 2 रूट 2 2 आएगा, एक मिनट 3 माइनस 2 रूट 2। तो ये है कि ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली ए इनवर्स की जब आइगन वैल्यू आएगी वो आएगी 1 बाई सॉरी यहाँ यहाँ पे 2 आएगा 4 नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं था।
ओ सॉरी हो ही था। तो इनवर्स की आइगन वैल्यू जाएगी 1/2 रूट 2 प्लस रूट 2 एंड 1/2 माइनस रूट 2। तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज हो जाएगी 2 + 2 रूट 2 बाई 2, 2 + √2/2 और 1/2 एंड एक आइगन वैल्यू हो जाएगी इसकी 2 - √2/2। तो हम सीधा ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, minimum is not this, and this option is correct, and this option and option 3 is correct, and option 1 is false, and option 2 is correct. This is the solution of this equation. अब इस क्वेश्चन में हमको इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है कि वी वेक्टर स्पेस है 3 × 3 मैट्रिसेस का ओवरफिल्ड रियल, ठीक है। और W1 हमको गिवन है एक सब स्पेस एंड W2 इसका एक और सब स्पेस है। ये है MSQ है, तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन इसमें होंगे, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, तो इसके एक से ज्यादा ऑप्शन इसके सही होंगे। ये पार्ट सी से है, और आई थिंक इससे पहले वाला भी पार्ट सी से ही था। हाँ, ये भी पार्ट सी से था। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं कि इसमें डायमेंशन, इसके अंदर 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है और कोई भी कंडीशन इसमें गिवन नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ W1 सिंपली देखेंगे तो वो भी 4 हो जाएगी, और सिमिलरली डायमेंशन ऑफ W2 होगी, वो 3 हो जाएगी। तो मतलब ऑप्शन ए और बी करेक्ट है। और डायमेंशन ऑफ ए W1 इंटरसेक्शन W2 निकालना है। लेट x बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 है, तो इससे कंडीशन क्या आएगी कि ए सी 0 b माइनस बी सी 0 d इक्वल टू 0 एक्स वाई जेड एंड माइनस जेड 0 0। ये कंडीशन अपनी आ जाएगी। अब हम यहाँ से एक चीज देखते हैं, ए इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, और ए इक्वल टू एक्स आ गया, और डी इक्वल टू 0 आ गया। तो तीन चीज तो हमको पता चल गई है यहाँ से कि ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 एंड डी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, इससे देखो सी इक्वल सॉरी, यहाँ से आ रहा है सी इक्वल टू वाई, सिंपल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ सी इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू बी एंड जेड इक्वल टू माइनस बी एंड सी इक्वल टू माइनस जेड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी इक्वल टू माइनस जेड। मतलब कि वी W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर जो मैट्रिसेस होंगी वो इस प्रकार से होंगी, ए और डी तो 0 हो गया, ए 0 डी 0, यहाँ पे सी लिख लेता हूँ। बी इक्वल टू सी है, तो यहाँ पे सी आ गया, यहाँ माइनस सी आ गया, ठीक है। और डी इक्वल टू 0 है, सी 0 सी। इस प्रकार से इसके अंदर एलिमेंट्स इसके अंदर एग्जिस्ट, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, तो इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। W1 इंटरसेक्शन W2 जो उसका है C बिलोंग्स टू R, तो इसमें ओनली एक ही वेरिएबल है, तो उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितना हो जाएगा? 1। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कितना हो जाएगा? 4 + 3 - 1, जो फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, 6 माइनस 7 - 1 = 6। 7 नो ग्रेटर देन इक्वल टू ना, इसके अंदर अपना एग्जिस्ट कर रहा है, इक्वल टू 1 भी आ रहा है ना, उससे ज्यादा होने वाले 1 तो उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका 1 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टी हमको गिवन है एक टी हमको एक वेक्टर स्पेस गिवन है T3 R3 टू R3, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, इसके टी नॉट इक्वल टू 0 एंड टी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 एंड टी क्यूब इक्वल टू 0। निलपोटेंट मैट्रिक्स, सीधा पहली चीज अपने यहाँ से कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और हम ये जानते हैं कि निलपोटेंट मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होता, तो टी इज नॉट इन्वर्टिबल। और इसका अंदर इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? टी क्यूब इक्वल टू 0, और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी वो भी टी क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया जो इसका आइसोमॉर्फिक होगा, जोड़ा कैनोनिकल फॉर्म इसकी इसकी जोड़ा कैनोनिकल फॉर्म ये होगी टी की। अब टी की अगर जैसी फॉर्म अगर ये हुआ, तो टी इसके सिमिलर है, तो इसकी रैंक कितनी हो गई 2। अब यहाँ पे टी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, 0 1 0 0 0 0 0 0 0, तो इसकी रैंक कितनी हो गई 1। ये वाला गलत, ये वाला सही। अब हमको गिवन है टी ऑफ 301, टी ऑफ 301 इक्वल टू अल्फा बीटा गामा गिवन है, ओके। और क्या है, अगर ऐसा होता है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 6 होगा। मैं मान लेता हूँ कि 301 को हम एक्स, दो हमको यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स गिवन है ना, उसकी इमेज भी गिवन है, प्लस में वाई 212, ये चीज हम मान लेते हैं, ये गिवन है। सो क्या हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख सकते हैं? ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2y,
यहाँ जाएगा 2x प्लस वाई, और यहाँ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 301। सेकंड कंडीशन से क्या आ रहा है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 2x, एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3, फर्स्ट कंडीशन। तो x प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 2x इक्वल टू 3, यहाँ से क्या आ रहा है, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2। ये चीज अपने को यहाँ पे गिवन है। एक सेकेंड, ठीक है, मैं यहाँ पे इसके डुप्लीकेट कर देता हूँ। ये चीज हमको गिवन है, तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया, -1, और ये हो गया तो t ऑफ 301 वो हो गया, ये हो गया -1 ऑफ 1,2,2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2,1,2। ये 301 इक्वल टू किया है। अब हम इसका दोनों और हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो हो जाएगा -1 ट्रांसपोज ऑफ 1 2 3 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 2 1 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास, और इसको जब करेंगे तो हमारे पास इसका आएगा अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 3 एंड गामा इक्वल टू 3। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। बस हमको यहाँ पे ट्रांसपोज लगाना था और हमको इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करना था इसके अंदर। अगर ये वाला अगर हम चीज यहाँ पे कर लेते तो ऑप्शन सेकंड हमारा ट्रू हो जाता। बहुत से स्टूडेंट ने एग्जाम में इसको फाइंड आउट नहीं किया। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन गिवन था, मैं थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, और ये सेकंड ऑप्शन इसका थोड़ा ट्रिकी था। इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है कि जो टी है वो 1 + 1 का एक टी R3 R2 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, और 3 लीनियर इंडिपेंडेंट हमको वेक्टर गिवन है, उसकी इमेज गिवन है। ठीक है, और m जो है वो स्टैंडर्ड आइगन वैल्यूज के रेस्पेक्ट में इसका हमको जो गिवन है, स्टैंडर्ड आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में इसका इमेज गिवन है। तो फर्स्टली हम चेक कर लेंगे तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हाँ तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो अब हम इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो तो हम सॉरी, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस E1 100, E2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 010, और E3 हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा 001, ये हो जाएगा। अब E1 को हम इन दोनों तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का ट्राई करेंगे। अगर मैं इन दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ तो इसका हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। वो E1 हम फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 100 इक्वल टू 1/2 ऑफ 1 -1, 1 प्लस में 1/2 ऑफ 1 1 - 1। ठीक है, सिमिलरली हम 0 1 0 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा 1/2 ऑफ 1 - 1, सॉरी 1/2 ऑफ 1 1 1 -1/2 ऑफ, अब हमको यहाँ पे 1 चाहिए, और अगर मैं, हाँ 1/2 ऑफ 1 -1 एंड 1। ठीक है, और 0 0 1 को जब मैं लिखूंगा तो 1/2 ऑफ 1 1 1 -1/2 ऑफ 0, अरे यार 0 क्यों लिख लेता हूँ मैं, 1 1 - 1 ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इनकी इमेज फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में। सो जब हम इसकी स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में जब हम इसकी इमेज फाइंड आउट करेंगे तो टी ऑफ E1 जो आएगा वो आ जाएगा 0 1 0, टी ऑफ E2 जो आएगा वो आएगा 0 0 1, एंड सॉरी सॉरी मैंने कुछ गलती कर दिया। टी ऑफ E1 हम फाइंड आउट ही कर लेते हैं। टी ऑफ E1 जो आएगा वो आएगा 1/2 ऑफ टी ऑफ 1 - 1 1, टी ऑफ 1 - 1 1, हाँ 1 - 1 एंड 1 इज 1 1 - 1, 1 1 - 1 प्लस में 1/2 ऑफ टी ऑफ 1 1 - 1, 1 1 - 1 1 1 1 1। तो देखते हैं 1/2, 1/2 2 2 0, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 1 0 के। सिमिलरली टी ऑफ E2 फाइंड आउट करेंगे, वो आएगा 1/2 ऑफ 1 1 1 का कितना था, 1 1 1 का था 1 - 1 1, 1 - 1 एंड 1 -1/2 ऑफ 1 - 1 एंड 1 का, 1 - 1 एंड 1 का ये था 1 1 - 1। इसको जब ऐड करेंगे ये आएगा 1/2, जो सेम है वो कैंसिल हो जाएंगे,
1/2, 1 minus 1 0, minus 1 and minus 1 minus 2, and 1 minus 1 is 0। तो ये आ जाएगा 0 minus 1 and 0। ठीक है, इसी तरीके से हम टी ऑफ ई थ्री भी फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ ई थ्री के लिए, 1 के लिए आ जाएगा 1 minus 1 1, 1 minus 1 and 1 माइनस, इसके लिए आ जाएगा हमारा 1 1 का 1 1 का 1 1 तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 minus 1 0, minus 1 minus 2 एंड 1 minus 1 0। तो जो हमारा ये हो जाएगा 0 -1 एंड 0। इसके जब एम मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगी, इसकी एम मैट्रिक्स जो फाइंड आउट करेंगे वो आ जाएगी 1 1 0 और 0 -1 0, 0 -1 0 एंड 0 -1 0, 0 -1 0। तो ट्रेस ऑफ एम हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। ठीक है, इसकी जो अपन आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे उसमें फर्स्ट आइगन वैल्यू तो आ जाएगी 1, सेकंड वन आएगी -1/2 प्लस माइनस √3 आयोटा। तो m प्लस आई की भी आइगन वैल्यू सिमिलरली ऐसे ही m प्लस आई की आइगन वैल्यू भी एक ही आएगी रियल। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड में। हम टी ऑफ 2 1 3 को जब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, 2 2 1 3 को 2 1 माइनस 3 को जब हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, इसको मैं बोल देता हूँ अल्फा, इसको बोल देता हूँ बीटा, इसको बोल देता हूँ गामा। जब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो ये होगा माइनस ऑफ गामा प्लस 1/2 ऑफ, सॉरी हम किसको लिखना था, 2 1 माइनस 3 को लिखना था ना। हाँ, तो ये हो जाएगा -1/2 ऑफ बीटा U1 अल्फा, अल्फा और प्लस में 5/2 ऑफ गामा। ठीक है, तो जब हम, सॉरी मैं ऑप्शन बी पे आ गया था। पहले हम ऑप्शन इसको देखते हैं, 2 1 -1 वाले को देखते हैं। हम्म, हमको क्या गिवन था, टी ऑफ 2 -1 5 को गिवन था, 2 2 -1 है या नहीं हमको चेक करना था। तो हम 2 1 -1 को अल्फा बीटा गामा के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का ट्राई करेंगे। तो 2 -1 5 इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस में 3 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस 3/2 ऑफ गामा। जब हम इसको ट्रांसपोज लगाएंगे तो 2 1 -5 इक्वल टू आ जाएगा 2 2 -1। तो क्या इसके इक्वल था, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन, सॉरी 2 2 -1 नहीं आएगा, ये आएगा 2 -2 एंड -1, 2 -2 एंड -1, तो वो उसके इक्वल नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब हम ऑप्शन सेकंड के लिए, फॉर ऑप्शन 2, इसके लिए हमको गिवन था कि 2 1 -3 हमको गिवन था। तो 2 -1 3 को हम लिखते हैं AU1 प्लस में BU2 प्लस में C A अल्फा, अरे यार, A अल्फा प्लस में बीटा गामा प्लस में C गामा। इसको जब लिखते हैं तो ABC की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 2 -1 3 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस में 1/2 ऑफ बीटा प्लस में 5/2 ऑफ गामा। ठीक है, अब हमको गिवन टी इनवर्स ऑफ, और हमको होता है टी इनवर्स ऑफ U1 इक्वल टू यू अल्फा इक्वल टू टी इनवर्स ऑफ अल्फा इक्वल टू गामा, टी इनवर्स ऑफ बीटा इक्वल टू अल्फा एंड टी इनवर्स ऑफ गामा इक्वल टू बीटा। तो जब हम इसमें इसको पुट करेंगे इनकी वैल्यूज को, टू इनवर्स ऑफ 1 -3 में, और जब यहाँ पे टी इनवर्स हम अप्लाई कर देंगे तीनों पे, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 2 1 0 के। और जैसे ही 2 + 1 + 0 करेंगे ये इक्वल टू आ जाएगा 3 के। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसको करने का एक और मेथड रहेगा कि हम इसका टी इनवर्स को जो हमने 2 1 -3 दिया है, दोनों तरफ ऑपरेशन टी ऑपरेट कर देंगे। तो 2 1 -3 इक्वल टू टी ऑफ अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हमने हम फाइंड आउट कर ही लिया है। एम के ऊपर उसको ऊपर हम उस पे ऑपरेट करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी सेम 2 1 0 ही आएगा। ठीक है, तो मैं इसको सेफली लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। 2 1 0 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बीटा गामा के, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, सॉरी अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश में लिख लेता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन में भी अल्फा बीटा गामा गिवन है ना। तो
दोनों ये सेम सेम ना हो। ये भी अल्फा डैश गामा डैश ही है। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, म्यू एक्स जो है वो उसका एक्स का एक का मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है, तो हमको देखें क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो बाय एलिमेंटल थ्योरम कि एवरी ए मैट्रिक्स satisfy इज मिनिमल पोलिनोमियल, तो मतलब कि ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल ए की पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी, ये ऑप्शन ट्रू हुआ। सेकंड ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो गिवन है, तो मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर, वो हो जाएगा माइनस ए के इक्वल। सो सिमिलरली हम इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए के ऊपर, तो ए की पावर 8 इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ए, नॉट ए स्क्वायर। थर्ड में दिया है कि एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, है ना, सॉरी माइनस गिवन है, फोर्थ ऑप्शन प्लस था, तो हम इसको एक्स माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए की क्यूब प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू जीरो। तो इसका माइनस वन, सॉरी एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ से आ जाएगा ए की क्यूब प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू जीरो, तो ए की पावर थ्री इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी, तो यहाँ से आ गया ए की पावर सिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी। सिमिलरली हमको गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए की पावर एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से अपन सीधा लिख सकते हैं ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ का करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज रॉन्ग। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने के दो मेथड है हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए क्या गिवन है हमारे पास, यू गिवन है, तो यू हमारे पास गिवन है, यू गिवन है थ्री बाई टू आई बाई टू एंड आइडेंटिटी। ठीक है, और तो यू स्टार कितना का ट्रांसपोज गिवन है, तो यू स्टार कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू माइनस आई बाई टू माइनस आई। तो मैं सबसे पहले यू स्टार इंटू यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, जो कि आएगा मोड ऑफ थ्री बाई टू का होल स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ आयोटा बाई टू का होल स्क्वायर प्लस में आई का होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा सेवन बाई टू, मतलब कि यू स्टार इंटू यू इक्वल टू आ गया सेवन बाई टू। ये चीज हमने पहले ही कंक्लूड कर लिया है। तो अब आते हैं ऑप्शन ए पे, तो ए क्या गिवन है हमारे पास, आई माइनस टू इंटू यू स्टार। तो पूछा है कि ए जो है रिस्क्यू हर्मिशन है या हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो हम पहले ए का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं क्या आता है, तो आई माइनस टू इंटू यू स्टार का होल कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा आई माइनस टू इंटू यू स्टार का कॉन्जुगेट, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आई माइनस टू इंटू यू स्टार, तो ये आ जाएगा ए, दैट दैट इज ए इक्वल टू ए स्टार। ये तो हर्मिशन मैट्रिक्स हो गया, इसको हर्मिशन नहीं हुआ, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। और अब ए इक्वल टू ए स्टार हुआ, तो थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये करेक्ट। ये एक सिमेट्रिक हर्मिशन मैट्रिक्स प्रॉपर्टी है कि बी प्लस आयोटा से अगर हम ए को लिखते हैं तो जो रियल पार्ट होता है वो उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट। अब आते हैं ऑप्शन सेकंड पे, तो ऑप्शन सेकंड में हमको क्या गिवन है, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स इक्वल इनटू ए एक्स इक्वल टू एक्स कोमा एक्स होगा, जहाँ पे इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स डिनोट करता है एक्स स्टार वाई। ये सेकंड ऑप्शन हमसे यही कह रहा है, सेकंड ऑप्शन हमसे यही कह रहा है कि जो इसका इनर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा जहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है सी से। ठीक है, सी थ्री से। तो अब हम इसका एक चीज करते हैं कि हम फाइंड आउट करने की क्या होगा, ये चीज हमारी क्या होगी। तो ए इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स विद ए एक्स जो होगा वो होगा ए एक्स का स्टार इंटू ए एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्टार ए स्टार ए एक्स। ठीक है, और इसके बाद हमको ए स्टार एक, तो ये चीज इक्वल टू एक्स स्टार एक्स की कब होगी, ये तो जब मैं यहाँ पे वाई गिवन है इसकी जगह जब हम एक्स रख दूंगा, तो एक्स स्टार एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्टार एक्स, तो इक्वल टू एक्स स्टार के कब होगा क्वेश्चन, जब ए स्टार इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए। तो हम ए स्टार इंटू ए फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ए स्टार इंटू ए कितना आ जाएगा,
इसको कितना ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, मतलब कि ए स्टार इक्वल टू ए स्टार इक्वल टू ए जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो आई माइनस फोर यू यू स्टार का आई माइनस टू यू यू स्टार का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, आई माइनस फोर यू यू स्टार प्लस में फोर यू यू स्टार यू इंटू में यू स्टार, और यू स्टार यू कितना है 7/2 था। तो ये कितना हो जाएगा, आई प्लस फोर यू यू स्टार प्लस में 7/2 था ना, 4u इंटू 7/2 इंटू यू स्टार, तो ये हो जाएगा 2 14, यहाँ पे माइनस था ना, चलो माइनस 4 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई प्लस 10 यू स्टार, और यू इंटू यू स्टार नॉट ए आइडेंटिटी, तो मतलब कि दैट इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब कि ये वाली चीज ट्रू नहीं होगी, क्योंकि ये ए स्टार इंटू ए आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। तो मतलब कि जो हमारा ये ऑप्शन जो इन्होंने गिवन था ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे सिंपली हमको ए स्क्वायर फाइंड आउट करना था, और ए इक्वल टू ए स्टार आने पर हमारा ए स्क्वायर सिंपली आ गया था। फिर उसके बाद हमको ये वाली प्रॉपर्टी देखनी थी कि यू स्टार इंटू यू किसके इक्वल होता है। अगर ये चीज हमको ये अगर 1 के इक्वल होता, सपोज दिस वन इज इक्वल टू 1, सपोज अगर ये 1 के इक्वल होता, तो यहाँ पे जो था यहाँ पे 1 आ जाता, 1 आ जाता, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते, ये आई के इक्वल हो जाता, और अगर ये आई के इक्वल हो जाता तो हमारा ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाता। तो अब कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट है। हाँ, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हमको सी एक्स और एम एक्स डिनोट द कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सी एक्स जो है वो मिनिमल है, और एम एक्स जो है वो मिनिमल, सी एक्स जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, और जो एम है वो है मिनिमल पॉलिनोमियल। ये चीज तो हमारे यहाँ पे क्लियर हो गई है। और जे जो डिनोट करता है वो डिनोट कर रहा है जोडल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड दैट इज ए इक्वल टू एस जे ए एस ट्रांसपोज। ये तो सिंपली इसकी जोडल कैनोनिकल फॉर्म की डेफिनेशन है। वहाँ पे एस जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, सम इनवर्टिबल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, सी एक्स ये दिया है और एम एक्स ये गिवन है ना। उसके बाद हमको चार ऑप्शन गिवन है कि ये ट्रू होगा नहीं होगा। तो फर्स्टली हमको सी एक्स और एम एक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो ये सी एक्स की जो ये वैल्यू गिवन है, इसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, उससे हमारे पास एम एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जो होगा एम एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू में एक्स माइनस 2। तो एम एक्स से ये एक्स कट गया, तो क्या आ जाएगा, एम एक्स इक्वल टू एक्स, इसको मैं फैक्टराइज कर लूंगा, तो ये कितना फैक्टराइज, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। और सिमिलरली सी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस टू की क्यूब। देखो, तो हमारे पास एम एक्स एंड सी एक्स दोनों के दोनों की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो इसकी आइगन वैल्यूज कितनी हो जाएगी, एक की आइगन वैल्यूज हो जाएगी 1 एंड 2, ठीक है। इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल में क्या हाईएस्ट पावर कितनी है 2, मतलब उसके अंदर 2 + 2 का विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स 2 एक उसका लोग जरूरी होगा ही। तो इसका हम जे इसका जोड़ा कैनोनिकल फॉर्म हम उसका बना लेते हैं, क्या होगा। तो 1 के रेस्पेक्ट में तो एक ही ब्लॉक का होगा, तो पहले 1 को ले लेते हैं, 1 0 0 0 0 1 0 0 0। 2 के रेस्पेक्ट में एक 2 × 2 का होगा, ठीक है, और एक होगा हमारा 2 का। ये हमारा हो गया जोड़ा कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। तो अब हम इसके और हम यहाँ पे C4 और M4 फाइंड आउट कर लेते हैं। जो कि हमारा C4 आएगा वो तो आ जाएगा 72, और जो M4 आएगा वो आ जाएगा 12। तो C4 माइनस M4 जो होगा वो हो जाएगा हमारे 60 के इक्वल, ठीक है। अब सम ऑफ जे, तो ऑप्शन है सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ जे ए इज 9। यस, इसके फाइंड आउट करते हैं, तो 1 + 2 3, 3 और 6 9, तो इसकी जो एंट्रीज का सम है वो 9 आ गया। अब हमको जे ए स्क्वायर जे की पावर 4 का निकालना है। अब हम ए 5 × 5 मैट्रिक्स, 5 × 5 मैट्रिक्स, अगर हम इसके सभी एंट्रीज अगर हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये है जोड़ा कैनोनिकल की फॉर्म है जिसमें ये ब्लॉक्स है। अगर हम जोड़ा कैनोनिकल फॉर्म की एक खासियत ये होती है कि अगर हम इसके ब्लॉक्स अगर हमें जोड़ा कैनोनिकल फॉर्म का स्क्वायर या उसकी पावर n निकालनी है, तो उसके ब्लॉक्स की पावर n निकाल लेते हैं और सिंपली उसको पुट कर देते हैं, तो वो ही उसका वैल्यू आएगा। तो J4A कितना हो जाएगा, J4A जो होगा वो होगा 4 1 0 0 0 0 0 1, क्योंकि ये एक के पावर 4 कितने होगी, 1 ही होती है, 0
एंड इसके निकालेंगे तो 0 0 16 32 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 एंड 16। तो इसकी पावर फोर्थ का ये वाला आ जाएगा। इसके सभी एलिमेंट्स का जब हम सम करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 16, तो वो इक्वल टू आ जाएगा 82 के। ठीक है, हमारे पास तो सभी ऑप्शन आ चुके हैं। M4 प्लस C4 इक्वल टू 4, यस। जोटा केमिकल फॉर्म में इसके कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4। तो टोटल हमारे 1 2 3 4, तो टोटल हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं इसके। तो क्या 3 ब्लॉक्स हैं? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। सम एंट्री का फॉर्म 9 है और इसका कितना है? 84, यस। तो इसका नहीं 84 नहीं 82 था। हाँ 82, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। तो इसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो ये हमारे CSIR जून 2026 में आए हुए क्वेश्चंस थे, जिसमें पार्ट बी पे 6 क्वेश्चन आए थे, पार्ट सी से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन आए थे, मतलब कि पार्ट बी से आए थे 6, ईच क्वेश्चन ऑफ नंबर 3, एंड पार्ट सी से आए थे 8, वो हो गया 4.75 का, मतलब 18 के तो यहाँ से आ गया। और 4.75 इंटू 8 करते हैं तो कितना आएगा? 4.75 इंटू 8, ये आ जाएगा 38। तो ये हो गया 56 मार्क्स का हमारा इस CSIR जून में लिनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट आया था, जो कि सभी बेसिक क्वेश्चंस आए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।